कुछ हो नहीं सकता इस देश का, हम लाइक हैव गिवन अप। जहाँ जाओ बस आदमी तैयार है कि बंदी है, बस उसको खा जाओ। इसलिए कभी कभी आई फील कि आई शुड लिव दिस कंट्री। को डबल सैलरी देनी चाहिए गर्ल्स को। There is still a bias thing, a men power. Still, you can see in the our stores, only 2 girls are there. If it's Bombay, it's safe, but in Delhi, I think it's not safe. ये डे की जॉब ही बेस्ट है, ना कि नाइट की। कि वुमेन्स को एक 8 बजे 9 बजे गाइडलाइन होती थी कि हमें घर पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि हमें डर लगता है। वैसे बॉयज़ बिंदास होकर निकलते हैं, वैसे गर्ल्स को भी होना चाहिए ना से। बहुत दिक्कत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। रात में लौटेगी घर में। You know, as humans we live in a period जहाँ पे जब भी इक्वालिटी की बात होती है उसके साथ बात होती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल प्लेटफॉर्म की। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने जो है फाइनल मंजूरी दे दी है कि औरतें जो है नाइट शिफ्ट्स में दिल्ली की दुकानों में, मार्केट्स में, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ एनी सॉर्ट उनमें काम कर सकती है। तो आज जो है हम निकले हुए हैं दिल्ली की सड़कों पे, वी आर हिटिंग द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली टू फाइंड आउट कि हाउ फीजिबल इज़ दिस आइडिया, कि क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या क्या डिफिकल्टीज़ रहेंगी, नॉट जस्ट फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़ बट ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयर्स जिनके यहाँ पे फीमेल स्टाफ है। तो आइए चलिए चलते हैं, चलिए। No, I'm not happy with it, of course. Why so? Because Delhi, I don't feel safe in the evening. If I go late also sometimes, because we are working late here as well. And by reach home around 9:30, the environment is not that great that you feel safe in Delhi. So we don't prefer to go late in the evenings. So of course my opinion is not good for all this, because the safety is also equally important. दिल्ली गवर्नमेंट ने नाइट शिफ्ट्स अलाउ कर दी औरतों के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉलिसी? According to Delhi, according to the environment that is here, it's not safe. But if it's Bombay, it's safe. But in Delhi, I think it's not safe. What are the concerns? Other concerns रात को when a female employee works at an office, क्या concerns, safety concerns के अलावा और क्या क्या concerns रहते हैं? Schedule, I think. Daily schedule, because night is for sleep, not for work. That's the basic thing, and that's the only concern I have as a person. Not sure about other people, maybe. As a lady employee, how do you see it कि क्या क्या और चीज़ें अगर सरकार ने ये चीज़ें अनाउंस करी हैं तो उनको और क्या क्या साथ में देना चाहिए कि शायद औरतों के लिए और कंफर्टेबल हो जाए और आसान हो जाए लेट नाइट शिफ्ट्स करना? सी, मुझे तो डे टाइम में नहीं उनके अभी कंफर्ट्स दिख रहे हैं, तो मैं रात के लिए आपको क्या बताऊँ। आई एम नॉट फाइंडिंग द गवर्नमेंट दिस डिसीजन इज़ राइट फॉर द लेडीज़। आई डोंट थिंक सो. It's their choices. Girls are doing in Delhi. It's been long they've been doing, but still I don't feel safe in the night. And what would you like to say to those people जो कहते हैं कि women keep on asking for equality, equal opportunities, equal platforms, और जब यहाँ पे साथ में same platform पे काम करने की बात की जा रही है तो फिर वो मना कर दे रही हैं, तो what would you say to those people? No, platform is okay. That is understandable that everybody wants to do. But when you come to these retails and these places, I don't feel that you'll get the equivalent thing with them. There is still a bias thing, a men power. Still, you can see in our stores, only 2 girls are there. The rest, more of the men power you can see. So equality thing, still our India has to work more and more on this, and the mentality has to be changed. Yeah. When it comes to their sisters, their family, they feel good about it. But when it comes to other females, they don't feel the same thing. So needs to work a lot. Education is a very important role. Everybody has to work out on that. As a woman yourself, एक स्टेप जो आप अपने साइड से लेती हैं अगर आप चीफ मिनिस्टर होती स्टेट की, कि जिससे विमेन एम्प्लॉयज़ के लिए उनका काम आसान हो जाता, वर्क लाइफ आसान हो जाती? वर्क लाइफ आसान हो जाती। मुझे लगता है वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट होती है, जो हमारे मेल एम्प्लॉयज़ हैं और जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, वेयर पीपल वांट टू पुल यू डाउन एंड वो ट्राई करते हैं कि आप उनके सामने, लाइक देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन दैट गोज अराउंड, जो कि दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। बेसिकली इफ़ अ फीमेल इज़ अर्निंग इन दिस सोसाइटी, तो अब होता क्या है, दैट फीमेल इज़ अर्निंग और उसके जो मेल बॉसेज हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसको जो फिज़िकली सेक्सुअली हरास करने की, और अगर वो सेक्सुअली हरास होने के लिए मना कर रही है या फिर उसको अपोज करती है, तो फिर उसको इमोशनली जो हरास करते हैं और उसके काम में, इन सारी चीज़ों के लिए आई थिंक एक रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए है, बट लॉ वगैरह वो आप पॉश की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ हो नहीं सकता इस देश का, हम लाइक हैव गिवन अप। वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर क्या ही कर लेंगे भाई, वो एक बंदे को थोड़ी ही चेंज कर सकते हैं। पूरी दुनिया ही ऐसी है, जहाँ जाओ बस आदमी तैयार है कि बंदी है, बस उसको खा जाओ।
दैट्स अ रियल, इट्स वेरी सैड. इसलिए कभी कभी आई फील कि आई शुड लेव दिस कंट्री. इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता. मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं है रात का नाइट शिफ्ट में, क्योंकि ना तो सेफ, अगर कंपनी के ऊपर सेफ्टी का भी है कि सेफ्टी उसका कौन लेगा जिम्मेदारी. सेफ्टी की लेडीज़ को घर रात में मतलब कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है. तो मेरे ख्याल से तो सेफ़ नहीं है, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है. आई हैव चेंज 10 ऑफिसेस. अभी तक 4 इयर्स का मेरा वर्किंग करियर है. चाहे वो MNC हो या कहीं भी हो, कुछ भी हो, हर जगह सेम ही है. आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. इफ़ यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग देन यू हैव टू बी वेरी गुड एट ऑफिस पॉलिटिक्स कि वहाँ पे आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो दैट नोबडी और एल्स यू आर अ वेरी पावरफुल पर्सन. योरसेल्फ, योर फैमिली इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग. तो आपके साथ ये सब नहीं होगा. अदरवाइज होता है, कोई माने या ना माने सब करते हैं. Everybody is compromising and when I see that every girl is compromising, मुझे कैसे कर लेते हैं लोग, मुझे नहीं समझ. बट हर एक इंसान कर रहा है. आपको ऊपर से देख के नहीं लगेगा, आपको लगेगा बहुत क्लीन है, कुछ भी क्लीन नहीं है. और ये क्या सेफ्टी वेफ्टी तो मुझे नहीं लगता ये इसमें गवर्नमेंट कुछ कर सकती है. ह्यूमन लेवल पे हम इतने ज़्यादा एथिक्स में वीक हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्या कर लेगी. रात को तो वैसे भी ऐसा मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कुछ अनसेफ है. अगर मेरा एक स्लीप शेड्यूल है, अगर वो मेरा दिन का बन जाता है तो मुझे रात में कोई ऐसा वो नहीं है. अगर मेरे पास एक कैब है आने जाने के लिए, अब कैब ड्राइवर देखो वो तो दिन और रात में ऐसा कुछ नहीं है, तो कभी भी हो सकता है. तो दैट्स इट. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे इनसाइट्स थे आपके. थैंक यू सो मच. मेरे को लगता है कि डे हो या नाइट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैटर करती है. बाकी वर्किंग में मेरे को कोई कंफर्टेबल. ओके, तो अगर तो आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि नाइट शिफ्ट्स पे आएँ आप, तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी अपने एम्प्लॉयर, अपने बॉस की तरफ से जो आपको चाहिए होंगी? बेसिकली सिक्योरिटी, ट्रैवलिंग का जो मतलब सिक्योरिटी पॉइंट होता है वो सबसे मैटर होता है. प्लस ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए एज अ नाइट पर्पस से. और जो सराउंडिंग स्टाफ है वो मैटर करता है बस. ऐसे क्या क्या सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं नाइट शिफ्ट्स पे औरतों के लिए वैसे नॉर्मली? जनरली मस्ट भी है, जैसे ट्रैवलिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कन्वेंस नहीं मिलता, या फिर उन लोग को मतलब इनसिक्योरिटी होती है, घर से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है नाइट शिफ्टिंग को लेकर के कि मतलब एनवायरनमेंट सही नहीं है. मेजर यही प्रॉब्लम्स आती हैं. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन, अगर तो आप दिल्ली की चीफ मिनिस्टर होती, व्हाट इज़ दैट वन थिंग यू वुड डू टू मेक द लाइफ ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़ बेटर एट वर्क प्लेसेस? मैं स्पेशल कैब्स चलाती या बस कुछ प्रोवाइड करती, इस तरीके से मैं कुछ प्लानिंग करती. बहुत सारी जो है अलग अलग गाइडलाइंस भी सरकार ने अपने इस नए नोटिफिकेशन के साथ जारी किया. नोटिफिकेशन जो है दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट के अंदर जारी किया गया बाय द लेबर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट. तो उसमें और भी बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट गाइडलाइंस भी है जो कि फॉलो करनी पड़ेंगी उन सभी एम्प्लॉयर्स को, बॉसेस को, ऑफिसों को जो रात को नाइट शिफ्ट पे औरतों को बुलाते हैं काम पे. बाकी चलिए आगे चलते हैं और एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं, एम्प्लॉयर्स से बात करते हैं. लेट्स फाइंड आउट मोर कि और क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसे फुल फ्लेजेड तरीके से रोल आउट करने में. तो अगर तो आप दिल्ली की चीफ मिनिस्टर होती तो आप वो एक कौन सा स्टेप लेना पसंद करती जिससे कि औरतों की वर्क प्लेस पे जो है वर्क लाइफ आसान हो जाती? वही है बेटर, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट अपना 8 जो होती है आपकी 9 to 8 जॉब होती है, वही परफेक्ट है. हाँ, वही बेस्ट है. इसके अलावा कोई बेटर ऑप्शन नहीं है उनके लिए. ये डे की जॉब ही बेस्ट है, ना कि नाइट की. और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके तरफ से होंगी आपके बॉस के लिए कि ये चीज़ होंगी तभी मैं कंफर्टेबल होंगी, आप पर्सनली कंफर्टेबल होंगी नाइट शिफ्ट करने के लिए? मेरे हिसाब से अगर नाइट शिफ्ट करते हैं तो नाइट के हिसाब से जो ऑनर्स हैं उनको डबल सैलरी देनी चाहिए गर्ल्स को, और उनका पिक एंड ड्रॉप होना चाहिए. वहाँ पे किस टाइप से किस टाइप से क्लाइंटेज है उसके अकॉर्डिंग. क्लाइंटेज अच्छा है तो मेरे हिसाब से नाइट शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं. लड़कियों को क्या दिक्कत आ सकती है अगर तो वो रात को काम करने निकलती हैं बाहर ऑफिसों में? लड़कियों को दिक्कत आ सकती है, कंपनी को दिक्कत नहीं आ सकती. लड़कियों को क्या दिक्कत आएगी? लड़कियों को यही दिक्कत आएगी कि घर वाले उनके जो है बोलेंगे नाइट शिफ्ट पे जा रहे हो, सेफ नहीं है. और क्या कहते हैं, यही रेप केसेस बढ़ रहे हैं. आपके साथ भी हो सकता है ऐसा, छेड़ते हैं लड़के रात में, जैसे नशेड़ियन हॉल होते हैं रात में. तो यही दिक्कत आ सकती है लड़कियों के साथ. कंपनी के साथ क्या दिक्कत आई? कंपनी को तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी. कि अगर तो आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होते तो आप एक ऐसे वो कौन सा नियम कानून लाते जिसके कारण औरतों का चाहे दिन हो चाहे रात ऑफिस में काम करना आसान हो जाता और भी उनके लिए? देखिए, काम करना तो आसान है. अच्छा, उनके काम करने में कोई कमी नहीं है कि वो काम नहीं कर रही हैं. काम तो पूरी मेहनत से वो भी कर रही हैं. जितना आप कर रहे हैं हम कर रहे हैं उतना वो भी कर रही हैं.
बशर्तन ये कि भाई जिसकी लड़की है उसके मन में तो 24 घंटे बात रहता है कि हमारी लड़की कैसी है, वहाँ पर किस स्थिति में है। कि परिवार वाले बार बार फ़ोन करते हैं कि बेटी कहाँ हो, कैसी हो, किस हालत में हो, कब आ रही हो। जैसे 8 बज जाता है, 8 बजे के बाद सभी लोग चिंतित हो जाते हैं। तो सरकार को इस चीज़ को बस हो, जो लोग हैं उनको बस सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छा करा तो अच्छी बात है। बाकी सब कुछ ठीक है, काम कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, सब काम कर रही हैं, पढ़ाई लिखाई भी बराबर कर रही हैं, हमसे आपसे आगे जा रही हैं। भाई देखते हैं ना, आप रिजल्ट आता है तो सबसे फर्स्ट पर वो आती हैं, लड़के पीछे रहते हैं। तो इसलिए अच्छा है सरकार को, तो जो अच्छा काम कर रही हो तो कर ही रही है, अच्छी काम कर रही है। बाकी मैं जिन अलग अलग गाइडलाइंस की बात कर रहा था जो कि सरकार ने साथ में जारी की है इस नए पॉलिसी के, उनमें से कुछ गाइडलाइंस ये भी है कि पॉश के लिए अलग से आईसीसी इंटरनल कमेटी, कंप्लेंट कमेटी बनाई जानी चाहिए ऑफिसों में अगर तो 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि नॉर्मल पॉश का एक्ट तो यही कहता है कि 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो पॉश कमेटी, आईसीसी कमेटी वो बननी चाहिए ऑफिसों में। सिक्योरिटी कैमराज होनी चाहिए, सेफ्टी सेफगार्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और साथ ही साथ कन्वेंस इत्यादि अलग अलग चीज़ें जो है एम्प्लॉयर्स को अरेंज करनी पड़ेंगी अपनी फीमेल स्टाफ के लिए, अगर तो वो उन्हें कंसेंट से, उनके कंसेंट से नाइट शिफ्ट पे बुलाते हैं। औरतों को कंसेंट देना पड़ेगा पहले से इन रिटन, अगर वो तैयार हैं रात को नाइट शिफ्ट करने के लिए अपने दुकानों में या फिर सुपरमार्केट्स, ऑफिसेज, जैसा भी सेटअप है उनका। विमेन एम्प्लॉय का आने जाने की व्यवस्था ज़रूर ये एक चैलेंज रहेगा हम लोगों को करने के लिए, लेकिन ये भी मैनेज हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये सब काम नहीं हो सकते। एंड इससे आने वाले टाइम में दिल्ली महानगर और राजधानी है दिल्ली, तो ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए कि बाज़ार जो हैं देर रात तक खुलने चाहिए। इन औरतों की सिक्योरिटी भी इससे धीरे धीरे कहीं ना कहीं अच्छी होएगी। नहीं, जो इन्होंने स्कीम किया है, जो इन्होंने ये लागू किया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वुमेंस को एक 8 बजे 9 बजे गाइडलाइन होती थी कि हमें घर पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि हमें डर लगता है। जैसे बॉयज़ बिंदास होकर निकलते हैं वैसे गर्ल्स को भी होना चाहिए ना से अगर। और साथ में गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि बसेस या मेट्रो कुछ भी प्रोवाइड करनी चाहिए लेट नाइट के लिए भी, ताकि लेडीज़ को भी कोई मुश्किल ना हो। ज़रूरी नहीं है कि कई लोग ऑटो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, वैसे गवर्नमेंट के अंडर में ये रहना चाहिए। तो भैया आज जो है हम दिल्ली की सड़कों पे निकले ये जानने के लिए कि जो सरकार की नई पॉलिसी है अबाउट विमेन एम्प्लॉयज़ डूइंग नाइट शिफ्ट्स वो कितनी फीजिबल है, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे ऑन बोथ द साइड्स, एम्प्लॉयर की साइड और एम्प्लॉयज़ की साइड। तो औरतों ने बहुत कुछ बताया, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स आज देखने को समझने को मिले कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और क्या क्या सरकार बेटर कर सकती है इस केस में, जिससे कि औरतों के लिए और आसान हो जाए टू वर्क नाइट शिफ्ट्स। बाकी ऐसे ही और न्यूज़ रिपोर्ट्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स, इनसाइट्स के लिए मेक श्योर टू लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब द एज ओरिजिनल्स। दिस इज मृणाल कुमारे साइनिंग आउट विद वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक कोहली। नहीं, हम तो रात में नहीं करने देंगे ड्यूटी भाई। क्यों नहीं करने देंगे? नहीं, रात में ड्यूटी करना ठीक नहीं है, दिल्ली का माहौल अच्छा नहीं है। कैसी कैसी दिक्कतें आ सकती हैं अगर तो नाइट शिफ्ट पे जाए? बहुत दिक्कत आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। रात में लौटेगी घर